فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی و چندرائن گٹا کے رکن اسمبلی کی قیادت میں AIMIM کے قانون سازوں کے ایک وفد نے BC کمیشن کے چیئرمین نرنجن راؤ سے ملاقات کی اور BCE کلاس کے الگ الگ سروے کے ساتھ ساتھ 14 ذیلی طبقات جو ریاست میں 4% ریزرویشن کے حقدار ہیں ان کے لیے میمورنڈم پیش کیا۔ بعد ازاں اس موقع پر ملک پیٹ کے رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بھی بتائی۔ میں ذوالفقار صاحب، مبین صاحب، جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت میں صدر مجلس بیرسٹر سعودین اویسی کی ہدایت پہ اور احمد پاشا قادری صاحب سب مل کر یہاں پر BC کمیشن چیئرمین سے ملنے آئے تھے اور ان کو ہم نے نمائندگی کی، ریپرزنٹیشن دیا کہ جو جیو 18 آف 10 اکتوبر 2024 جو پورے BC SC ST تمام کا سروے جو حکومت کرا رہی ہے، ہم نے مجلس کی جانب سے اس کا خیر مقدم کیا اور خاص طور پر چیئرمین صاحب سے ہم نے یہ نمائندگی کی ہے کہ BCE زمرے کے اندر جو مسلمان آتے ہیں، جس کے اندر 14 مختلف آپ کاسٹ بولیے یا مختلف شعبے بولیے، 14 شعبوں کو جو یہ BCE کے زمرے کے تحت ان کو ریزرویشن نہ صرف تعلیمی ادارے بلکہ نوکریوں کے اندر جو ریزرویشن ملتا ہے، تو ہم نے کہا ہے کہ ان کی دیانتداری کے ساتھ پوری ڈیٹیل ان کا سروے کیا جائے۔ ان کے بھی یہ جتنے بھی کاسٹ جو مسلمانوں کے اندر جتنے بھی شعبے، جو 14 شعبے جو BCE کے زمرے میں آتے ہیں، ان تمام کا بھی ڈیٹا لیا جائے، اس کو ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اندراج کیا جائے۔ اور ہم عوام سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ لوگ آئیں گے تو آپ بھی لکھائیے BCE زمرے کے اندر جو لوگ آتے ہیں وہ لکھائیے کہ آپ BCE میں آتے ہیں، نہ صرف روزگار میں بلکہ تعلیمی میدان میں ہر جگہ ریزرویشن کے واسطے BCE کے زمرے میں آنا ضروری ہے تاکہ ہم کو ریزرویشن ملے۔ اور ہم نے خاص طور پر نمائندگی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب حکومت نے BCs کا ریزرویشن بڑھانے کی بات کی ہے تو جب یہ تمام لوگ آئیں گے تو یہ تمام اندراج کریں گے، تو جب BC کا ریزرویشن بڑھے گا تو اسی تناسب کے اندر ہمارا رائٹ فل شیئر جو BCEs کا جو ہے ان کو بھی انکریز ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم نے نمائندگی کی ہے اور ہم عوام سے پھر ایک بار یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ یہ سروے کے اندر حصہ لیجئے اور آپ جو BCs میں آتے ہیں وہ لکھائیے کہ آپ BC میں ہیں۔ موسیٰ ندی کی خوبصورتی کے منصوبے نے حیدرآباد میں اپنی وسیع پیمانے اور بڑے علاقے کی وجہ سے توجہ حاصل کی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی قیادت میں تیار کیا گیا یہ منصوبہ موسیٰ ندی کے دونوں جانب 1 کلومیٹر تک پھیلے گا اور اس علاقے کو ایکسپریس ویز، واک ویز، سائیکلنگ ٹریکس، پارکس، پلازے اور عالمی سطح کے تعمیراتی منصوبوں سے آراستہ کرے گا۔ اس پروجیکٹ کی کل لاگت کا تخمینہ 1.5 لاکھ کروڑ روپے لگایا گیا ہے، جو ایک طرف خوشی اور دوسری طرف تشویش کا باعث بنا ہوا ہے۔ تلنگانہ کانگریس حکومت نے حال ہی میں عوامی تنظیموں کے ساتھ ایک اجلاس میں اس منصوبے کی تفصیلات پیش کی، جس میں بتایا گیا کہ موسیٰ ندی کے دونوں جانب 110 مربع کلومیٹر پر محیط اس منصوبے کو عالمی معیار کا ترقیاتی مرکز بنایا جائے گا۔ اس منصوبے میں زمین کے حصول اور آباد کاری کا عمل بھی شامل ہے، جس پر اجلاس میں تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔ اس شاندار منصوبے کے باوجود کچھ مسائل ایسے ہیں جو سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں۔ حکومت کی طرف سے زمین کے حصول کی حد کے بارے میں کوئی واضح اعلان نہیں کیا گیا، حالانکہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ موسیٰ ندی کے کنارے اور بفر زون میں 10,000 سے زائد عمارتوں کو مسمار کیا جائے گا۔ ریاست کا مقصد اس علاقے کو خالی کرا کے منصوبے کے لیے زمین حاصل کرنا ہے، لیکن شفافیت کی کمی کی وجہ سے عوام میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے۔ مزید برآں 1.5 لاکھ کروڑ روپے کی تخمینی لاگت پر بھی بحث جاری ہے، کیونکہ سرکاری ٹینڈر دستاویزات میں یہ لاگت 58,000 کروڑ روپے بتائی گئی، جبکہ حکومت نے اس سے کہیں زیادہ رقم کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ ورلڈ بینک، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ
बैंक और नेशनल डेवलपमेंट बैंक जैसे बड़े मालियाती इदारों से कर्जे लिए जाने का इम्कान है। मंसूबे के निफाज और शफाफियत के बारे में सवालात में उस वक्त मजीद इजाफा हुआ जब ये इंकशाफ हुआ कि इब्तदाई टेंडर्स को मनसूख कर दिया गया था ताकि एक मखसूस कंसल्टेंसी कंपनी मेन हार्ट कंजर्वेशन को मास्टर प्लानिंग की जिम्मेदारियां दी जा सके। इससे मजीद तशवीश बढ़ गई और अवाम का मानना है कि हुकूमत मालूमात छुपा रही और अवाम को गुमराह कर रही। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा है कि मरकजी बजट में तेलंगाना को 1 रुपया भी मुख्तस नहीं किया गया। इस बारे में रेवंत रेड्डी ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। केटीआर ने कहा है कि अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक ने कहा है कि बहरिया के रडार स्टेशन अवामी इलाकों में नहीं बनाए जाने चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट्स को लोगों से दूर जंगल में रखा जाना चाहिए। देखिए बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने मजीद क्या कहा। రూపాయి రాలేదు అని చెప్పడానికి కూడా ఆయనకు ధైర్యం చాలలేదు. ఆఖరికి బట్టి విక్రమార్కతో మాట్లాడించిండు. ఆయన మేము అడిగినాం ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడాలి కదా, ఇంత ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ అంటే మాట్లాడలే, భయపడ్డాడు. నిన్న కూడా అక్కడ పోయి ఒక బీజేపీ నాయకుడు మాట్లాడినట్టు దేశ రక్షణ ముఖ్యం, దేశాన్ని మేము కాదన్నామా దేశ రక్షణ గురించి, కానీ దానికి అమెరికా వద్దన్న టెక్నాలజీ, అమెరికా యూకే లాంటి దేశాలు ఇట్లాంటి వద్దు అంటున్నాయి. నేవల్ రేడార్ స్టేషన్లు ప్రజా సమూహాల మధ్యన ఎక్కడో పెట్టుకోవాలి అటవీ ప్రాంతాల్లో. అటాంటిది నువ్వు ఇలా వికారాబాద్లో తీసుకొచ్చి పెట్టి చుట్టుపక్కల ఉండే ప్రజలకు, పర్యావరణానికి అన్నిటికీ ఇబ్బంది కలిగే విధంగా చేయడం ఏ రకంగా సమంజసం, ఏ రకంగా మీరు సమర్థించుకుంటారు? हैदराबाद में नईम गैंग जैसा एक नया गैंग सामने आया है। ये गैंग गरीबों के घरों पर हमले कर रहा। मिर्चल जिले बोडुपल में सर्वे नंबर 63/1 में सरकारी अराजी पर 1999 में उस वक्त के वज़ीर दाखिला देवेंद्र गौड़ के हाथों 1150 गरीबों को पट्टे दिए गए थे। इसी इलाके में देवेंद्र नगर, गौतम नगर, सीताराम नगर और अंबेडकर नगर बनाए गए। एक गैंग इस कॉलोनी में मकानात बना रहा और गरीबों को निशाना बनाकर कब्जा कर रहा। रातों रात जमीनों पर कब्जा करके गैर कानूनी तामीरात कर रहे। मुतासरीन अपनी शिकायत का इजहार करते हुए कह रहे कि ये गैंग गरीब लोगों पर हमला करती है जो उनकी राह में रुकावट बनते हैं। मुतासरीन ने कई बार रेवेन्यू और पुलिस हुकाम से उनकी जमीन को बचाने की इल्तिजा की, लेकिन नतीजा बेनतीजा निकला। देखिए मुतासरा ने इस ज़िमन में क्या कहा है। నా దాంట్లో బేస్మెంట్ వేశారు. నేను చాలా పేదవాడిని, నాకు కాలు యాక్సిడెంట్ అయింది. యాక్సిడెంట్ నేను కట్టుకోలేని పరిస్థితిలో నా దాంట్లోకి వచ్చి ఎంటర్ అయ్యిండ్రు. నేను ఇప్పుడు నాన్నకు ఆగసాట్లు పడి ఆ బేస్మెంట్ లేపుకొని ఆ గుడిసెలో ఉన్నా సార్. నాకు 4 సార్లు గోల కొట్టించారు. నాకు 4 సార్లు, ఒక్కొక్కసారికి 1,00,000 అట్ట 4 సార్లు నేను కంకర కలుపుకుంటాను. యా నుంచి తీసుకురావాలా? मोहम्मद रज़ीउद्दीन एडवोकेट ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उन्होंने हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में एक अहम सिलसिले में हाजिरी देते हुए कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो मौजूदा दौर में अवाम का सहारा बनी हुई है और उनकी तकालीफ को अपनी तकालीफ समझकर अवाम को इससे नजात दिलाती रहती है, जिसके बाद कुछ हासदीन ऐसे होते हैं जो मुल्क और अफराद का भला होते हुए नहीं दिख पाते। इसी के मकसद से झूठे केसेस और इल्ज़ामात दूसरों पर आयद कर देते हैं। यानी कि एक कांग्रेस पार्टी के लीडर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए इसका नाजायज फायदा उठाते हुए पुलिस 1 टाउन में एक झूठा केस दर्ज करवाया जो क्राइम नंबर 76/2024 के तहत आता है। मौजूदा दौर के हालात इस कदर नाक़िस हो गए हैं कि ना तो सियासी पार्टियां खुद अवाम को लेकर नेक फाल अंजाम देती हैं और ना ही अगर कोई दूसरी पार्टी अवाम का भला करना चाहती है तो उसको आगे बढ़ने देती है। इसकी एक मिसाल कांग्रेस के लीडर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी हैं जो मुल्क के अवाम का भला होते हुए नहीं देख सकते। ताहम ये तमाम नाक़िस हालात रोनुमा होने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सदर मजलिस ने हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में पिटीशन क्रिमिनल फाइल दर्ज किया है और इसके बाद बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए इस केस को झूठा करार दिया। हकीकत तो ये है कि झूठ कितना ही ताकतवर क्यों न हो, सच के आगे टिक नहीं पाता और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। यकीनन एक मिसाली मुमलिकत वो होती है जहाँ पर इंसाफ को मद्देनजर रखते हुए फैसले सुनाए जाएं। जिसका नाम कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी है, जो R&B मिनिस्टर है नलगुंडे का, उन्होंने भरे रमज़ान में तमाम रोज़ेदारों पे एक झूठा केस बुक करे अपने झूठे बयानात पे और पुलिस को अपने हाथ में रखकर
अपने ओहदे का गलत फ़ायदा उठाकर अपने तमाम यानी कि दौलत ताकत का इस्तेमाल कर कर ये नॉन बेलेबल के सेक्शंस का केस लगा के हम तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनों को, लीडर्स को, कौम के खिदमत गुजारों को जेल को पहुंचाने के लिए बहुत सारी साजिशें रचाई, हमको परेशान करने की कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सरपरस्त वो ताकत है, नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर नेशनल कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नलगुंडा हैदराबाद, जिन्होंने अपने हिदायत से मुझे मशवरा दिया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में क्वाश पिटीशन डालो और ये फॉल्स केस को जहाँ तक भी हो सके क़ानूनी मदद से इसको यानी कि खारिज करवा दो। उनके मशवरे के बाद हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में अप्रोच किया और क्रिमिनल पिटीशन नंबर 8769 ऑफ 2024 के तहत हमारा क्वाश पिटीशन यहाँ पे अंडर सेक्शन 482 यहाँ पे दर्ज हुआ। उसके बाद ऑनरेबल जस्टिस सुजना मैडम की बेंच पे इसकी एक यानी कि लंबी कार्रवाई हुई, बहुत सारे बार सुनवाई हुई, दो तरफा सुनवाई हुई और पूरे यानी कि एविडेंसेस को ऑन रिकॉर्ड को देखकर मद्देनज़र रखकर ये अदालत यहाँ की ऑनरेबल हाई कोर्ट जस्टिस सुजना मैडम साबिक वजीर व BRS पार्टी ज़िले आदिलाबाद सदर जोगो रामन्ना ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में गैर एलानिया इमरजेंसी नाफिज है। उन्होंने उटनूर मंडल में भी BRS पार्टी के कारगुजार सदर KTR के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सख्त मजम्मत की। उन्होंने आदिलाबाद ज़िले मुस्तकिल में वाक़ BRS पार्टी दफ्तर में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मूसा नदी प्रोजेक्ट में 1.5 लाख करोड़ रुपए के स्कैम के जरिए इसमें से 25,000 करोड़ रुपए दिल्ली भेजे जा रहे। इस इल्ज़ामात लगाने पर पुलिस ने कांग्रेस कायदीन की शिकायत पर कारगुजार सदर KTR के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने सवाल किया कि 420 वादे करके आवाम को धोखा देने के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आवाम से 420 वादे करते हुए आवाम की उम्मीदों के साथ साथ किसानों की उम्मीदों को नजरअंदाज किया है। ఏదైతే ఆత్రం సుగ్నా గారు ఇచ్చినటువంటి అప్లికేషన్పై కేసు కట్టడం జరిగింది. మేము దాన్ని పూర్తిగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఇది అక్రమం, ఇది అన్యాయం. నిజంగానే ఈ రాష్ట్రంలో పోలీసు వ్యవస్థకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే, పోలీసులు నిజంగా న్యాయపరంగా ఉంటే మేము పోలీసులు స్వాగతిస్తాం. కానీ మేము అంతకుముందే ఆదిలాబాద్లో कई दिनों से मंडल ऑफिस के चक्कर काटने के बाद नौजवान खातून जिद पर बैठ गई कि वो बिना सर्टिफिकेट लिए वो ऑफिस से वापस नहीं जाएगी। जो गुलामबा गदवाल के नारायणपुर गांव के मनवापाडू तहसीलदार वहीदा के खिलाफ एक नौजवान खातून ने गुस्से का इजहार किया कि उसे OBC जात और आमदनी के सर्टिफिकेट के लिए घंटों दफ्तर में ठहराया जा रहा। नौजवान खातून ने तहसीलदार पर इल्जाम लगाया कि उसे सर्टिफिकेट के लिए दफ्तर के चक्कर लगवाए जा रहे। उसने कहा कि वो यहाँ से तभी जाएगी जब तक उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। लड़की के हंगामे पर तहसीलदार ने खातून का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। పోలీస్ రైట్స్ మీకు లేవు, పోలీస్ రైట్స్ లేవు మీకు, అంతే. ఇది ప్రజలకి ఎవరైనా వాళ్ళ బాధ రావాలా ఇష్టం వచ్చినట్టు. इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने आंध्र प्रदेश स्किल स्कैम केस में दिल्ली, मुंबई और पुणे में सीमेंस कंपनी के 23.54 करोड़ रुपए के मनखुला और गैर मनखुला असासों को जब्त किया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने APCID केस की बुनियाद पर तहकीकात का आगाज किया है। ED को जाली रसीदों के जरिए सामान की खरीदारी का पता चला है। स्किल डेवलपमेंट फंड्स को जाती खातों में मुंतकिल किया गया। ED ने DTCL के MD खानोलकर और सुमन बोस मकूला चंद की जायदादें भी जब्त कर ली हैं। अदाकारा रश्मिका मंदाना को बनाया गया साइबर क्राइम ब्रांच का सफीर।
फिल्म अदाकारा रश्मिका को फिलहाल हुकूमत हिंद की जानिब से साइबर क्राइम बेदारी प्रोग्राम के लिए सफीर के तौर पर मुकर्रर किया गया है। हुकूमत हिंद ने साइबर क्राइम से सबको आगाह करने के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए रश्मिका को ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया गया है। हेलो, मैं रश्मिका मंदाना। कुछ महीनों पहले मेरा एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया जो एक साइबर क्राइम था और है। एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट आई डिसाइडेड टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट साइबर क्राइम एंड स्प्रेड अवेयरनेस। आई एम हैप्पी टू अनाउंस कि इस फाइट में मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ मिला है और मुझे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी IFOC ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हो रहे इंतखाबात में इंडिया इत्तेहाद की जीत यकीनी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में भी इलेक्शन लड़ेगी। इन बातों का इजहार मौसूफ ने श्रीनगर में नामानिगारों से बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तारीखी दिन है क्योंकि 7 बरस के बाद चुनी हुई सरकार ने अपना काम काज संभाला। अखिलेश यादव ने कहा, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इंडिया अलायंस ने यहाँ पर हुकूमत तश्कील दी। उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर की नई हुकूमत को मुकम्मल इख्तियारात फराहम करने की खातिर स्टेट हुड की बहाली नागुज़ीर है। उत्तर प्रदेश में हो रहे इंतखाबात के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी की हार साफ दिखाई दे रही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर मुहाज पर नाकाम साबित हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के सरबराह ने कहा, उत्तर प्रदेश में भाजपा दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रही। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की जानिब से उम्मीदवार खड़ा करने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि महाराष्ट्र में भी हम इलेक्शन लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक चौंका देने वाला और परेशान कुन वाकया सामने आया, जहां एक खानदान को पता चला कि उनकी नौकरानी रोटी बनाने से पहले पेशाब के साथ आटा गूंद रही है। इसका पर्दाफाश उस वक्त हुआ जब मशकूक खानदान ने बावर्ची खाने में मुलाजिमा को खुफिया तौर पर रिकॉर्ड किया। फुटेज का जायजा लेने पर वो नौकरानी को देखकर खौफजदा हो गए, जिसकी शनाख्त रीना देवी के नाम से हुई है। वो एक बर्तन में पेशाब करती है और फिर उसे आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल करती है। ये वाकया गाजियाबाद के एक क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में पेश आया। जिगर से मुतल्लिक सेहत के मसाइल में मुब्तला खानदान ने खाना पकाने के लिए एक घरेलू मुलाजिमा रखी थी। शिकायत कुनिंदा के मुताबिक नौकरानी रीना गुज़िश्ता 8 साल से खानदान के लिए काम कर रही थी और खानदान के शुकूक व शुबहात बढ़ गए, जिसकी वजह से वो बावर्ची खाने में नौकरानी की सरगर्मियों को रिकॉर्ड करने के लिए एहतियात से मोबाइल फोन रख गए। वीडियो में रीना की गंदी हरकत का इंकशाफ हुआ, जिससे खानदान मुकम्मल सदमे में था। वीडियो देखने के बाद अहले खाना ने क्रॉसिंग रिपब्लिक के मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुलाजिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।